Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online steel structure series. So this is the seventh lecture video and first one on the beams. So in this lecture we're going to cover the beams. And basically this would be the introduction to the beams, and inshallah in the next lecture we're going to design the beams and analyze the beams. So without further ado, we're going to start our lecture. So what are the beams? So beams are the basic parts of any frame structure, like as shown in the figure. That you could see a steel frame structure with which comprises of columns, which are basically compression members, and then there are beams, which are basically flexural members, not entirely the tension member but flexural members. ठीक है, इस पर लोड जो अप्लाई हो रहा है वो मेंबर जिनमें बेंडिंग आती है और जो उस बेंडिंग के कॉरस्पॉन्डिंगली फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, दैट इज़ डिज़ाइंड अ बिट डिफरेंटली फ्रॉम द टेंशन मेंबर्स. सो बेसिकली आपको ये एक बीम्स नज़र आ रही हैं, जैसे कि ये आपको ये चीज़ है, ठीक है. And in this case, these are the columns, and obviously these girders are designed as a beam, and these purlins are also designed as beams. As you can see, another example of steel beams that are used in bridges. These girders or these steel girders are basically the steel beams, and here's the example that this is the truss, and above it, to support the roofing system, this system is called purling, as shown in this thing. So these are also designed as steel beams. So now we're going to look at how the beams behaves when the stresses are applied to it. Let's say if this is the example, and if UDL is applied over it, so what's going to happen according to that, in response to that, the top fiber would be feeling the compressive stresses. There would be compressive stresses in the top fiber. However, in the bottom fibers there would be tensile stresses. So compression would be at the top of this beam, and there would be tension in this thing. If I look at the cross section of this beam, so one can clearly see that there in the above the neutral axis, this is the neutral axis, and above the neutral axis there are compressive stresses develop. However, in the tensile stresses in the bottom region, there are tensile stresses below the neutral axis. Here C is the distance from the neutral axis to the bottommost fiber, and Y is the distance to the fiber that we are interested in finding out the stresses. This thing, how to find out the stresses, we're going to cover in detail in the coming few slides. So what is the basic difference between a truss and a beam? You need to understand that the truss members, the topic that we first covered were the tension members and the compression members. Basically in the truss, in any truss system, all the members are either tension members or compressive members. They could be facing tensile forces, and respect to that, those will be tensile members, and they could be facing experiencing compressive forces. So basically in a truss, any member that is, let's say if I make a simple truss like here, just a simple example of it. So these members, all of these members, like this is the first member, this is the second member, this is the third member, all of these would be either in tension or compression, and in respect to that, those members would be tension members or compression member. They won't be behaving like a beam. So in a truss, all the members are axially force members, where they could be experiencing tensile forces or they could be experiencing compressive forces. So this is the basic difference between axial stresses. In a truss member, all the members are axially stressed, either tensile or compressive. However, in a beam, the beam is experiencing tensile stress and compressive stresses, but they are respective to the not axial forces. They are not experiencing the axial forces, but they are experiencing the bending phenomena, bending movements. So in response to that, that's the basic difference. That in a truss, all the members are axial stressed. However, in case of beams, all the members or a beam is a flexurally stressed member, and in respect to that, corresponding to the flexure, there would be tension and compression. So this is the basic difference. Obviously there would also be tensile stress and compressive stress, but those would be corresponding to the bending moment. Look at the difference between axially force members, and one is flexural stress members. Here are the few commonly used sections for a beam section. Most common shapes that are most commonly used are a W section or S section.
However, there are chances there are places that we could be using channel section as well as tubular sections. But most frequently used shapes for a beam sections are W section or S sections. There's another thing called M which resembles to these shapes, but there's a slight difference between W and M section. So these are the commonly used shapes for a beam section. So how to design a beam? What should we be taking care of? It should be make sure that the load carrying capacity of a beam which we are designing should be greater than the applied load. So load carrying capacity, which we're going to find out by this formula phi mn. Here mn is a nominal load carrying capacity or moment carrying capacity, which should be greater than equal to mu. So the formula for the nominal moment carrying capacity is this one. We have read this formula in the previous chapters in the previous subjects. So अगर हमें मोमेंट नॉमिनल मोमेंट के लिए फार्मूला पढ़ना हो तो हमारे पास क्या हो जाता है, वी हैव read this formula, sigma is equal to my over I. So basically here F is equal to sigma, the stress is produced, m is the nominal moment carrying capacity, y divided by I. So this is the formula, and we need to make sure that our moment carrying capacity should be greater than equal to u. Here phi is the strength reduction factor or resistance factor, and this value is 0.9 for the case of beams when we are finding out its moment carrying capacity of any beam. So this is the basically phenomena that when a beam is loaded, जब हम beam पे load apply करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि obviously the reactions कुछ produce होंगे. If I cut a cross section from here, so it would behave like this कि reaction एक इस तरफ आ जाएगा एक upward, उसकी वजह से force आ रही है. Corresponding to that, when I cut a section, there would be shear force and there would be moment. If I look at the cross section, as I have shown that it is a W section or I section, तो क्या हो जाएगा कि ये इसकी अगर न्यूट्रल एक्सिस है, so C is the distance from the neutral axis to the topmost fiber, where Y is the distance to any fiber that we are interested in. टॉप पे क्या कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, बॉटम पे क्या टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे. और ये स्ट्रेसेस क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? बिकॉज इसमें क्या हो रही है, बेंडिंग इन्वॉल्व हो रही है. दीज आर नॉट एक्सियल स्ट्रेस, दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ठीक है, एक मेंबर अगर अपनी पोजीशन में था उसमें बेंडिंग इन्वॉल्व हुई, क्या हुआ? क्योंकि मूवमेंट की वजह से हो जाएगी. एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस, द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस आर बेसिकली द फ्लेक्सर स्ट्रेसेस. तो वी नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस थिंग, एंड देन दिस इज द थिंग. और उसके बाद हमारे पास हम अभी फार्मूला पढ़ चुके हैं. सो थिंग्स आर रिपीटिंग दैट वी हैव रेड अर्लियर, दैट एफ इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई. एफ कुड बी डिनोटेड एज सिग्मा. और एफ वाई इज द यील्डिंग स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जहाँ पे मेंबर जाके यील्ड हो जाएगा, एंड दैट वुड बी द लोड कैरिंग कैपेसिटी, नॉमिनल लोड कैरिंग कैपेसिटी एम एन. एंड ऑब्वियसली once the member starts yielding, so it's going to start at the top and then it's going to proceed to the bottom. ये हम इंशाल्लाह अगली स्लाइड में देखेंगे कि कैसे होता है. सो हमारे पास m वुड बी रिप्लेस बाय एम एन, मतलब उसकी जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है. c इज द डिस्टेंस फ्रॉम द, ऑब्वियसली मैक्सिमम जो स्ट्रेसेस होंगे वो टॉप पे प्रोड्यूस होंगे, तो c इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द टॉप मोस्ट फाइबर, और द बॉटम मोस्ट फाइबर भी हो सकता है, इधर से लेकर इधर तक भी हो सकता है. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब ये टर्म जो हो जाती है, अगर मैं इसको दोबारा से देखूँ, दिस सी गोना कम टू दिस थिंग, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एन डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय सी. हमारे पास ये आ जाएगा यील्डिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस. और उसके बाद यील्डिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉमिनल लोड, नॉमिनल मोमेंट, और आई डिवाइडेड बाय सी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस. ठीक है, आई डिवाइड बाय सी क्या बन जाता है, सेक्शन मॉडुलस, एंड वी गोना डिनोटेड बाय एस. और यही इक्वेशन दोबारा से फिर शिफ्ट कैसे हो जाएगी कि ये एस अगर इस साइड पर आ जाए तो हमारे पास नॉमिनल मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, हाउ वी गोना फाइंड आउट, द फॉर्मूला फॉर इट इज यील्डिंग स्ट्रेस इनटू द सेक्शन मॉडुलस. सो इस तरीके से जो कि हम प्रीवियस स्लाइड में देख रहे थे कि हमने मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, हमने नॉमिनल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये फार्मूला डिराइव हमने कर लिया सिंप्लीफाई करके. सिंपल सा फार्मूला इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई, और आई डिवाइडेड बाय जो अगर सी हो जाए मैक्सिमम तो दैट वुड बी सेक्शन मॉडुलस, और सेक्शन मॉडुलस जब मैं एस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास उसकी नॉमिनल मोमेंट आ जाएगी. फिर सिंपली मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास उसकी बीम की जो फ्लेक्सुरल कैपेसिटी या मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी. इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे. सो ये फार्मूला था. अब एक छोटा सा डिफरेंस आता है. सबसे पहले हम इसका बिहेवियर देख लेते हैं. एक फेलियर, एक बीम फेल होती कैसे है. तो सबसे पहले क्या है, लेट्स से हमारे पास ये एक बीम है जो कि स्टील बीम है और उसका डब्ल्यू सेक्शन है. ठीक है, कोई भी सेक्शन हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ डब्ल्यू सेक्शन. हम अगर उस पर लोड अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंगली उसके मूवमेंट्स, ऑब्वियसली इधर अगर सिंपली सपोर्टेड है तो मैक्सिमम मूवमेंट सेंटर पर आएगा. अगर इसकी मूवमेंट डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी, BMD बनेगी. ठीक हो गया. और इसमें कॉरस्पॉन्डिंगली अभी स्ट्रेस मैं कह देता हूँ, लेट्स से अभी इससे कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएंगे. अब क्या हुआ कि जब मैं लोड अप्लाई करता हूँ तो देयर वुड बी 5 स्टेजेस.
5 स्टेजेस बनती हैं कि एक बीम फेल होती कैसे है। जब लेट्स से मैंने लोड अप्लाई किया तो क्या होगा, टॉप पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे और बॉटम पे टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे। तो मेरी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो कैसे बनेगी कि टॉप पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुआ और आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रल एक्सिस तक जीरो हो जाएंगे। ये मेरी लेट्स से न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉटम पे क्या हो जाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो पहली स्टेज क्या है, पहली स्टेज ये है कि मैं जब लोड अप्लाई करता हूँ तो स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर लेस देन यील्डिंग स्ट्रेसेस। दैट मीन्स कि टॉप पे भी अभी यील्डिंग नहीं हुई और बॉटम पे भी यील्डिंग नहीं हुई, मतलब लोड अप्लाई कर रहा हूँ और अभी यील्डिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस नहीं हुई और टॉप पे। ठीक है, ये पहली स्टेज है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। द नेक्स्ट स्टेज इज कि हमारे पास उसी तरीके से मैं लोड अप्लाई करता जा रहा हूँ, मैं लोड और बढ़ाता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा कि टॉप पे कंप्रेसिव प्रोड्यूस है, बॉटम पे टेंसाइल ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट अब जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर इक्वल टू द यील्डिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, दैट इज द सेकंड स्टेज। अभी तक बीम कैसे लीनियरली बिहेव कर रही है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लीनियर है, टॉप पे कंप्रेसिव आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस हो रहे हैं और टेंसाइल उतने ही होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि टॉप वाले पोर्शन, ये अगर क्रॉस सेक्शन में देखो तो इस जगह पर टॉप मोस्ट फाइबर पे यील्डिंग हो चुकी है और बॉटम मोस्ट फाइबर पे यील्डिंग हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गए दोज आर इक्वल टू यील्डिंग स्ट्रेसेस, बट अभी वेब में जो स्ट्रेसेस हैं दोज आर लेस देन यील्डिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, अब थर्ड स्टेज ऐसी आती है, जैसे मैं अब ये लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो अब क्या हुआ, टॉप पे तो यील्डिंग हो गई, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर है वो क्या हो रहा है कि पहले ये ऐसे स्ट्रेट लाइन थी, ऐसे थी, अब क्या होना शुरू हो गया कि सिर्फ टॉप पे यील्डिंग नहीं हो रही, अब उससे नीचे कुछ फाइबर हैं, लेट्स से फ्लैंज के बॉटम तक या वेब के कुछ पोर्शन में भी यील्डिंग होगी। तो इस वजह से मेरे जो यील्डिंग स्ट्रेसेस हैं वो थोड़ा सा नीचे ऐसे आ जाएंगे, प्रोलॉन्ग हो जाएंगे और ऐसे करके आ जाएंगे और उसके बाद फिर इस तरीके से हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हाईलाइट हुआ पड़ा है, इफ़ आई कुड शो यू बाय जूमिंग इन, तो आप देखें कि सिर्फ टॉप पे यील्डिंग नहीं हुई, बॉटम पे नहीं यील्डिंग हुई, बीच में भी कुछ पोर्शन में यील्डिंग हो गई, जो कि ये ब्लैक पोर्शन से शो किया गया है। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज क्या है कि फोर्थ स्टेज पे क्या होगा कि टॉप पे यील्डिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, बॉटम पे भी, और थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन पूरे वेब में भी यील्डिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गया। दैट मीन्स पूरा वेब भी यील्ड कर गया है। ठीक है, दिस इज द फोर्थ स्टेज। लोड बढ़ाते जा रहे हैं और हमारे पास ये इस तरीके से फिनोमेना होता जा रहा है। एंड द मोमेंट वी क्रॉस दिस स्टेज, अब जबकि पूरी यील्डिंग हो चुकी, अब इससे ज़रा से भी जैसे लोड अप्लाई करेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा, दिस सेंट्रल पोर्शन वुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ हिंज, प्लास्टिक हिंज। मतलब क्या हो जाएगा कि ये फ्री टू रोटेट हो जाएगा, ये ऐसे कोलैप्स हो जाएगी, ये पोर्शन ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे कोलैप्स हो जाएगा। दिस इज द फेलियर स्टेज। ठीक हो गया। सो इस तरीके से बिहेव करता है ये फेलियर मैकेनिज्म है कि पहले क्या करो, लोड अप्लाई होता है, टॉप पे कुछ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं बट वो स्ट्रेसेस यील्डिंग से कम होते हैं। दूसरी स्टेज क्या आ जाती है कि टॉप पे भी स्ट्रेसेस वो कितने यील्डिंग के बराबर आ गया, बॉटम पे भी यील्डिंग के बराबर आ गया, दिस इज कॉल्ड यील्डिंग स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है कि अभी ऑब्वियसली सिर्फ टॉप का यील्ड हुआ है, बॉटम में यील्ड हुआ है, बट इस जगह पर वेब अभी भी लोड को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अभी इसमें यील्डिंग नहीं हुई। फिर क्या होता है कि वो जो यील्डिंग स्ट्रेसेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं टॉप से लेकर इधर मिड तक, नीचे से ऊपर की तरफ प्रोसीड करना शुरू हो जाते हैं। एट द फोर्थ स्टेज, दिस इज द स्टेज कि जहाँ पे यील्डिंग स्ट्रेसेस थ्रू आउट फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्रोड्यूस हो चुके हैं। एंड द मोमेंट वी क्रॉस दिस स्टेज, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हिंज या प्लास्टिक मैकेनिज्म प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। सही हो गया जी। तो ये इस तरीके से फेलियर इसका बिहेवियर है। हम नॉर्मली क्या कंसिडर करते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि द मोमेंट टॉप पे यील्ड कर गया, बॉटम पे यील्ड कर गया, तो दैट इज कंसिडर्ड अ फेलियर मैकेनिज्म। बट उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी किसी भी बीम की उससे ज़्यादा होती है, मतलब वो अभी भी इतना लोड अभी भी बर्दाश्त कर सकता है। सही है। सो दिस इज़ हाउ अ हिंज बिहेव्स। एज एग्जांपल, इसकी प्राइम एग्जांपल है कि जैसे आप डोर्स के जो होती है हिंज जॉइंट होती है वो इस तरीके से ओपन होते हैं कि लेट से ये एक अगर है तो क्या हो जाएगा, लेट से ये बीम थी, इफ़ आई कैन डू शो यू, दिस वाज द बीम। सो क्या हो जाएगा, अगर इधर ये हिंज बनना शुरू हो जाए, हिंज इज दिस पोर्शन, तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों पोर्शन फ्री टू रोटेट हो जाएंगे। दैट मीन्स जब मैं लोड अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे फ्रीली वो मूव करना शुरू हो जाएगी। जैसे आपका ये डोर वाली जो हिंज है, इट वुड स्टार्ट बीविंग लाइक दिस, दैट मीन्स कि उसकी फर्दर लोड कैरिंग कैपेसिटी खत्म होगी। जैसे अप्लाई करेगा वन पोर्शन वुड बी फ्री टू मूव विद रिस्पेक्ट टू अनदर। सो दिस इज हाउ हिंज फिनोमेना टेक्स प्लेस। मतलब जब ये स्टेज आ जाए दैट मीन उसके बाद लोड कैरिंग कैपेसिटी खत्म होगी एंड द फेलियर वुड रिजल्टेंटली हैपन और उसके बाद कोलैप्स हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ अ प्लास्टिक हिंज। ये आप प्लास्टिक हिंज देखें अगर, तो कुछ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हैं कि अगर आप इसके ऊपर फर्दर लोड अप्लाई करेंगे दैट मीन्स कि ये पोर्शन लेट्स से अगर इसके ऊपर मैं यूँ इस तरह करके लोड अप्लाई करूँ दैट मीन दिस पोर्शन इज बिहेविंग लाइक अ हिंज, उसकी वजह से क्या होगा कि ये फ्रीली ये नीचे की तरफ मूव हो जाएगा।
ठीक है. सो इट वुड स्टार्ट बिहेविंग. अनदर एग्जांपल इज दिस थिंग कि जब टॉप से लेकर बॉटम तक अगर शील्डिंग हो गई तो क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन और दिस पोर्शन वुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ हिंज. दैट मीन्स ये पोर्शन ईजिली विद रिस्पेक्ट टू इज मूव आना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज हाउ अ हिंज बिहेवियर टेक्स प्लेस हो जाएगा, और दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक फेलियर मैकेनिज्म. अच्छा, अब एक चीज़ है कि हम जो अभी सेक्शन मॉडुलस पढ़ चुके हैं. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक मूवमेंट एंड प्लास्टिक मूवमेंट. ठीक है भाई, कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है. ठीक है, कोई भी एक बीम है तो व्हाट इज़ इट मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी, हमें कैसे पता चलेगा. तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि लेट से अभी मैं प्लास्टिक के फिनोमेना में नहीं गया, मैं कहता हूँ कि अभी सिर्फ F इज़ इक्वल टू एफ वाई. ठीक है, सो अगर मैं दोबारा से दिखा सकूँ, सो ये एक स्टेज है, दिस इज़ द स्टेज कि जब सिर्फ ये सेकंड स्टेज है जिसमें सिर्फ अभी टॉप पे यील्डिंग हुई और बॉटम पे यील्डिंग हुई और उसके बाद स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लीनियरली हो रही है. एंड अनदर स्टेज इज दिस, ये फोर्थ स्टेज है कि जिसमें टॉप से लेकर बॉटम तक थ्रू आउट यील्डिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट स्टेज. ठीक है, एक ये हो सकती है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी. अच्छा, एक डिफरेंस ये है कि F इज इक्वल टू एफ वाई और ये यील्डिंग स्ट्रेस हो जाएगा. दैट मीन्स इधर लोड कैरिंग कैपेसिटी कुछ होगी, कुछ मूवमेंट बर्दाश्त कर होगा, दैट इज एम एन. एंड ऑब्वियसली लोड कैरिंग कैपेसिटी कुछ इधर होगी प्लास्टिक की, एम पी. ठीक है, सो अब क्या कह सकते हैं, मैं इसको अगर एम वाई से डिनोट कर दूँ, लेट से अगर इधर यील्डिंग हो चुकी है. ठीक है, सो ये ऑब्जर्व किया गया है जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, तो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन दिस कैपेसिटी बाय 20 to 30% डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द बीम. ठीक है, 20 to 30% इससे ज़्यादा होती है लोड. इन सम केसेस इट इज़ 10 to 20%. कोई बुक्स इसको 10 to 20% कहते हैं कि प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन यील्डिंग मूवमेंट कैपेसिटी बाय 10 to 20%. दैट्स से 10 to 20% है. ठीक है, इट फॉर आई बीम्स एंड फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शंस इसकी कैपेसिटी 50% भी ज़्यादा हो सकती है. इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन सी बीम यूज़ कर रहे हो. ठीक है जी. अच्छा, अगर हम देखें कि एट यील्डिंग हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या थी कि सिर्फ टॉप पे यील्डिंग स्ट्रेसेस थे, बॉटम पे यील्डिंग स्ट्रेसेस थे, और वो कुछ ऐसे लीनियरली वेरी कर रहे थे. ठीक हो जाएगा. सो दिस वाज द कंप्रेशर रीजन अगर टोटल एक्सिस ऊपर देखूं, एंड दिस वाज द टेंसाइल रीजन. ठीक है, और ऑब्वियसली अब ये मेरे पास है एक रीजन, इसका सेंटर ऑब्वियसली ये एक ट्रायंगुलर शेप है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा. इफ़ दिस इज अ ट्रायंगुलर सेक्शन, ये ऐसे ट्रायंगुलर सेक्शन है, तो इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई कर रहा होगा. इट वुड बी लाइंग फ्रॉम 1/3 फ्रॉम दिस रीजन, फ्रॉम द जो बड़ी वाली साइड है उससे 1/3 पे लाई कर रहा होगा, और ये रीजन हो जाएगा 2/3. सिमिलरली इसका जो नेट रिजल्टेंट ऐड कर रहा होगा, ये नीचे वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का क्या ऐड कर रहा होगा, इट वुड बी एक्टिंग फ्रॉम 1/3 ऑफ दिस थिंग. मतलब ये जो टोटल डेप्थ है इसके 1/3 से इधर से ऐड कर रहा होगा, और बाकी ऊपर वाला रीजन हो जाएगा 2/3 हो जाएगा. ठीक है जी. तो अगर मैं कहता हूँ कि इसका सेंटर, इसका रिजल्टेंट कंप्रेशन का इधर ऐसे ऐड कर रहा है, टेंशन का ऐसे ऐड कर रहा है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल मल्टीप्लाई बाय विड्थ. ठीक है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितनी होगी, वुड बी क्या हो जाएगा कि इस ट्राइंगल का एरिया मल्टीप्लाई बाय विड्थ, जितनी बीम की विड्थ है. तो अब इस एरिया का ट्राइंगल क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा. इट वुड बी, अगर ट्राइंगल है तो क्या हो जाएगा, हाफ. ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, लेट्स से अगर ये दिस इज द बेस, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बेस कितनी हो जाएगी d/2, तो मैं कर दूँ हाफ मल्टीप्लाई बाय d डिवाइड बाय 2, और हाइट कितनी होगी fy. ये तो हो गया एरिया इस ट्राइंगल का. ठीक है, तो मैं कहते हैं हाफ fy इंटू d/2, और मैं उसको जब उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगी. सो टोटल कंप्रेसिव फोर्स किसके बराबर आई, हाफ. ठीक है, बेस कितनी आ गई d/2, और हाइट कितनी आ गई fy. तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और जब आप उसको उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगी. ठीक हो जाएगा. सिमिलरली टेंसाइल फोर्स कितनी आती है, वो इसी तरीके से हाफ d/2. ठीक है, अब इस लोअर ट्रायंगल का क्या करोगे, तो d/2 इसकी बेस है, हाइट कितना fy है, और उसको जब इसके बीच से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा. तो सिमिलरली जितनी कंप्रेसिव फोर्स होगी उतनी ही टेंसाइल फोर्स होगी. ठीक हो जाएगा. अब ऑब्वियसली ये एक ऑब्वियसली कंप्रेसिव फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है, तो ये एक रेजिस्टिंग मूवमेंट कपल प्रोड्यूस करेंगे, और इन दोनों के दरमियान मूवमेंट आर्म कितना होगा, दैट वुड बी 2/3 ऑफ d. ठीक है, ये होपफुली आपको पीआरसी में बड़ी डिटेल में समझाया होगा. अगर आप पढ़ रहे हैं अभी पीआरसी तो आपको क्लियर हुआ होगा, बट ये हम शायद पहले भी कर चुके हैं कि ऑब्वियसली इन दोनों के दरमियान मूवमेंट आर्म कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ d.
ये कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ डी। ये मैं फिर से एक समझा दूँ वैसे कि करने के लिए क्या हो जाएगा कि ये रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है, अगर मैं एक्सप्लेन कर सकूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये इस पूरे वाले ये जो इधर से लेकर इधर तक डेप्थ है इसका क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो अगर मैं डोनेट करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेप्थ कितनी है, अगर इसको मैं शो कर सकूँ, सो इट वुड बी 1/3 मल्टीप्लाई बाई d/2। ये टोटल डेप्थ कितनी है 1/3 बाय d/2। ये इधर से लेकर इधर तक, ये इधर से लेकर इधर तक, और ये बाकी कितना बच जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बच जाएगा, इट वुड बी 2/3 ऑफ d/2। तो वो क्या बच जाएगा, अगर मैं यहाँ से शो करूँ इधर से लेकर इधर तक, ये डेप्थ कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड दिस वुड बी 2/3 ऑफ d/2, 2/3 ऑफ d/2। ठीक है, अब ये भी 2/3 ऑफ d/2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, ये इसके लिए नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ d/2। तो 2 टाइम्स आ जाएगा 2/3 ऑफ d/2, अगर मैं ये टोटल इधर से लेकर इधर तक हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 ऑफ d/2 ये 2 बार हो जाएगा, तो ये 2 अगर इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो वी वुड बी लेफ्ट विद 2/3 ऑफ d। तो इस तरीके से टोटल कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स के दरमियान जो मूवमेंट आर्म होगा दिस वुड बी 2/3 ऑफ डेप्थ। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर मैंने इसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है तो किसी एक फोर्स, बेशक कंप्रेसिव फोर्स कर लो, बेशक टेंसाइल फोर्स कर लो, दोनों का जो भी मैग्नीट्यूड बन रहा है दैट इज़ द सेम। ठीक है, तो फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका मूवमेंट आर्म कितना है, तो फोर्स कितनी है Fy BD डिवाइड बाई 4, वो कैसे आ जाएगा Fy B इंटू डी, 2 2 4 हो जाएगा, और उसको मूवमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 ऑफ डेप्थ। तो मेरे पास यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, दैट इज Fy इंटू BD² डिवाइड बाई 6। क्या था, यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी आ गई Fy इंटू BD² डिवाइड बाई 6। सही है, अब समझने की बात यह है कि हम पहले एक फार्मूला डिराइव कर चुके थे प्रीवियसली, जो हम पिछली स्लाइड में अगर मैं आपको वापस ले जाऊँ तो हमारा क्या फार्मूला था कि मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी किसके बराबर आती है, ये है नॉमिनल मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब नॉमिनल मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है, इट कुड बी आइदर इक्वल टू My, यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी के बराबर भी हो सकती है, एंड इट कुड आइदर बिकम इक्वल टू MP, प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी। यील्डिंग कब हो जाएगी, जब सिर्फ टॉप पे यील्डिंग हो रही है और बॉटम पे यील्डिंग हो रही है, तब My लेंगे, और अगर Mn किसके बराबर हो जाए, M प्लास्टिक के, तो क्या हो जाएगा, जब वो फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाएंगे। अब अगर इनिशियली मैं देखूं, अगर मुझे My चाहिए तो मैं क्या करूंगा, Fy इंटू एस। ठीक हो गया, तो मेरे पास ये फार्मूला आया। अगर मैं ये देखूं फॉर यील्डिंग कैरिंग कैपेसिटी फार्मूला क्या हो जाएगा, Fy इंटू एस। ठीक है, मुझे जब चाहिए कि यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है। अब इसमें क्या चीज़ है, Fy तो ये आ गया, इसमें S किसके बराबर आ जाएगा, S बाकी जो पोर्शन बच गया है ये इधर से लेकर ये इधर तक। ठीक है, दिस वुड बी BD² डिवाइड बाई 6, दैट इज S। ठीक हो जाएगा, तो S क्या चीज़ है, इसमें मैं आपको दोबारा से इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, हम अभी तक इसको पढ़ते आ रहे थे सिर्फ सेक्शन मॉडुलस, बट ये क्या है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का मतलब ये है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली, मतलब हमारे पास जब तक लीनियरली बिहेव कर रहा है दैट इज इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, मतलब वो शेप अपनी रिकवर कर जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाती है कि जब हमारे पास फोर्थ स्टेज थी कि टॉप पे भी यील्डिंग होगी, बॉटम पे, और थ्रू आउट मेंबर में यील्डिंग होगी, तो अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगी, ट्रायंगल नहीं बनेंगे, बस रेक्टेंगल, एक टॉप पे रेक्टेंगल, एक बॉटम पे रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगी कि टॉप पे कंप्रेसिव फोर्स हमने फाइंड करनी है, तो फिर उसी तरीके से कि इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, इधर ट्रायंगल का एरिया था, इधर रेक्टेंगल का एरिया, और मल्टीप्लाई बाय विड्थ कर देंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, देन अगेन इसकी तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये इसकी डेप्थ हो जाएगी, और इसकी मैं अगर Fy से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो Fy इंटू d/2, Fy इंटू d/2 ये इस रेक्टेंगल का एरिया, और उसको इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टॉप कंप्रेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सिमिलरली अगर बॉटम फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो बॉटम फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, उसी तरीके से ये d/2 इंटू Fy, ये इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा, उसको मल्टीप्लाई बाय b कर दोगे तो आपके पास टेंसाइल फोर्स आ जाएगा, या टेंशन फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ये ऐड कहाँ पे करेंगे, इधर तो क्या था, इधर तो ये 1/3 वाला चक्कर था, बट इस रेक्टेंगल में सिंपल है कि ये d/2 है, इस d/2 के बिल्कुल सेंटर पे ऐड कर रही हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ d/2, 1/2 ऑफ d/2 आधे पे ऐड कर रहा होगा। तो अगर 1/2 d/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इसी तरीके से 1/2 d/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो फिर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, और 1/2 d/2 हो जाएगा, 1/2 d/2 ये, 1/2 d/2 ये, तो 2 टाइम्स 1/2 d/2 हो जाएगा, ये 2 2 से कट जाएगा, तो आपके पास सिंपली डिस्टेंस क्या बच जाएगा,
अगर ये कट जाए 2 और 2 तो आपके पास डिस्टेंस बच जाएगा सिंपली d/2। तो फिर क्या करोगे, उसी तरीके से अब प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी अगर हो जाए तो वो किसके बराबर आ जाएगी, आइदर टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, F इंटू बी डी डिवाइड बाई 2, और उसको मूवमेंट आर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, Fy इंटू बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि हमारे पास ऐसे ऐड करेगा। तो अब इसमें Fy ये आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, बी डी स्क्वायर बाई 6। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी हमने यूज़ कर रहे हैं ये बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6, और इधर क्या यूज़ कर रहे हैं, बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इधर इसको बोला है बी डी स्क्वायर बाई 6 को हमने बोल दिया, डोनेट किया है एस से, और इधर इसको डोनेट कर दिया, इस फैक्टर को जो जिस लेकर इधर उसको हमने जेड से डोनेट कर दिया। ठीक है, अब ये एस क्या है, एस को बोलेंगे हम, ये भी सेक्शन मॉडुलस है, ये भी सेक्शन मॉडुलस है, बट ये हो जाएगा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और ये जो जेड हो जाएगा ये हो जाएगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, ये हो जाएगा इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस और ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो अगर आपने इलास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी होगी तो आप क्या करोगे, एफ वाई को इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दोगे ई से, और अगर आपने प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आपने फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करोगे, यील्डिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट कर मल्टीप्लाई कर दोगे, यील्डिंग स्ट्रेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जेड से, विच इज़ द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, इलास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी एंड प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी। इलास्टिक में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर टॉप पे और बॉटम पे यील्डिंग होगी, दैट मीन्स इफ अगर हम इसको कंसिडर कर लें फेलियर स्टेज, तो दिस इज द इलास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी। और प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, उसमें हम वेट करते हैं कि वेब में भी यील्डिंग हो जाए। ठीक है, सो प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी को हम एम पी से शो करेंगे और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक और टर्म आ जाती है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर क्या होता है, इट इज़ द प्लास्टिक सेक्शन रेशियो ऑफ प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टू द इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के। अगर रेशियो फाइंड कर लें प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जेड डिवाइड बाई एस, तो हमारे पास ये शेप फैक्टर आ जाता है किसी भी बीम का। क्लियर है जी, सो दिस इज द थिंग, ये हमारे पास फार्मूला थे कि अगर एम वाई दैट इज यील्डिंग मूवमेंट कैपेसिटी इंटू एस, और ये हो जाएगा। अब अगर एस देख लिखें तो एस किसके बराबर था, ठीक है, एस वुड बी चेंजिंग। अब सिर्फ तो अभी ऑब्वियसली हमारे पास बीम ऐसी थी तो उसके हिसाब से हमारा बन रहा था बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6। ये अगर दिखा सकूँ मैं तो ये क्या है, बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास अगर मैं इसको ये अब ये बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6 बन क्या रहा है, अगर इसको देखा जाए थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई डिवाइड बाई सी। ठीक है, आई डिवाइडेड बाई सी। जैसे अगर मैं एक रेक्टेंगुलर बीम कंसिडर करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एस किसके बराबर था, फार्मूला क्या था, अगर एस का फार्मूला हमने भी देखा बी डी, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर बीम की खाली बात करूं, बट इट वुड बी चेंजिंग फॉर डिफरेंट बीम्स, बी डी डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो, आप इसको इससे भी फाइंड कर सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12, ये बी डी क्यूब। अगर इस बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स फाइंड करना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी, अगर मैं इसका फार्मूला लिख सकूं तो क्या हो जाएगा, बी डी क्यूब डिवाइड बाई 12, ठीक है, ये आ जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मोस्ट फाइबर न्यूट्रल एक्सेस टू द टॉप मोस्ट फाइबर और बॉटम मोस्ट फाइबर। ठीक है, अगर तो रेक्टेंगुलर बीम है तो सी बराबर हो जाएगा टॉप के लिए भी और बॉटम के लिए भी, और अगर डिफरेंट एक अनसिमेट्रिकल सी शेप है तो ये सी की वैल्यू टॉप के लिए कुछ और होगी और बॉटम के लिए कुछ और हो जाएगी। तो अब इसके लिए क्या करोगे, ये आ जाएगा सी किसके बराबर हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, डी का हाफ हो जाएगा, तो डी बाई टू। अब इसकी कटिंग करोगे तो फार्मूला वही बन जाएगा, बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6, जैसे कि प्रीवियसली ये हम देख चुके हैं, बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो आपने फाइंड करना हो अगर इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस तो आप सिंपली इस फार्मूला से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसको डिवाइड बाय सी कर दोगे। इंटरेस्टेड हो अगर तो टॉप मोस्ट फाइबर में स्ट्रेसेस में यील्डिंग इन कैपेसिटी, तो अगर तो ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ रेक्टेंगुलर सेक्शन में क्या हो जाएगा कि सी ऑब्वियसली जितना टॉप के लिए होगा उतना ही बॉटम के लिए होगा। बट इन केस ऑफ अगर अनसिमेट्रिकल शेप है, जैसे ये एक टी शेप है, तो इसमें सी यहाँ से लेकर टॉप मोस्ट फाइबर के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा और बॉटम मोस्ट फाइबर के लिए ये हो जाएगा। हम कम वाली वैल्यू चूज़ करेंगे, कम से कम वो कितना उसका यील्डिंग मोमेंट की कैपेसिटी है। ठीक है, तो इनमें से कम वाली वैल्यू चूज़ करेंगे कि सी ऑब्वियसली सेक्शन मॉडुलस हमें क्या चाहिए, हमें यील्डिंग मोमेंट की कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम वो कितने पे जाके वो यील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, यील्डिंग स्ट्रेस को एस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनमें से कम वाली वैल्यू यूज़ करेंगे और कम वाली के लिए क्या हो जाएगा जिसमें सी की वैल्यू ज़्यादा हो।
तो सी कहाँ ज़्यादा होगी, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप पे ज़्यादा है या बॉटम पे ज़्यादा है। इंशाल्लाह ताला एक प्रॉब्लम करेंगे उसमें ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि सी कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है फॉर अनसिमेट्रिकल सेक्शन, जैसे कि ये है। सिमेट्रिकल के लिए तो सेम ही रहेगा। ये तो आ गया भाई इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। बट अगर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या था, एफ वाई और इनटू जेड, ठीक है। अब z कैसे फाइंड आउट करना है, z के लिए एक उसने बड़ा सिंपल सा एक तरीका बता दिया है कि आप क्या करें, वो जो भी शेप है उसका हाफ एरिया, मतलब उसका हाफ एरिया कर लें और मल्टीप्लाई बाय ए कर दें। अब ए क्या चीज़ है, ए इज़ द मोमेंट आर्म, ए इज़ द मोमेंट आर्म। अगर मैं प्रीवियसली रिपीट कर सकूं तो जैसे यही था, देखो ये क्या था, इसमें अगर फार्मूला देख सको तो वो ये था कि ये यील्डिंग स्ट्रेस, ये यील्डिंग स्ट्रेस हो जाएगा। और उसके बाद क्या था, ये हाफ एरिया, मतलब हमारे पास एरिया कितना बचा था, अगर मैं इसको देख सकूं, जो इस पूरे सेक्शन का एरिया क्या है, बी इंटू डी, बी इंटू डी ये एरिया था, और उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये हाफ एरिया हो जाएगा। इसको मैं ए बाई 2 कह दूँ। और उसके बाद इन दोनों के दरमियान मोमेंट आर्म, ठीक है, इन दोनों के दरमियान मोमेंट आर्म कितना था, डी बाई 2, कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स के दरमियान। तो अगर प्लास्टिक मूवमेंट फाइंड करना तो क्या करना है, पहले उसका यील्डिंग स्ट्रेस, उसको उस सेक्शन के हाफ एरिया, मतलब उसका एरिया फाइंड कर लो, उसको हाफ कर दो, और इन दोनों के दरमियान जो मूवमेंट आर्म हो जाएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। सो बेसिकली एस किसके, ये जेड किसके बराबर है, हाफ एरिया इंटू डी बाई 2। जैसे एस बराबर था किसके, अगर मैं दिखा सकूँ नेक्स्ट स्लाइड में, एस किसके बराबर है, एस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय सी, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड कर लो और उसको सी से डिवाइड कर दो। सिमिलरली जेड फाइंड करना है तो उसका हाफ एरिया, उसका मतलब एरिया फाइंड कर लो, उसको हाफ कर दो और डिवाइड बाय ए। अब ए क्या है, लेट्स से अगर ये टॉप पे कंप्रेसिव फोर्स है और बॉटम पे टेंसाइल फोर्स है तो उनके दरमियान जो मोमेंट आर्म है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो डी सेक्शन में, डी सेक्शन में क्या हो जाएगा कि ये देखो, लेट्स से अगर टॉप पे मैं कह दूँ कि दिस इज़ द कंप्रेसिव फोर्स और बॉटम पे इधर है टेंसाइल फोर्स, तो इन दोनों के दरमियान जो मोमेंट आ जाएगा दिस इज द ए डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका हाफ एरिया कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, देखो इसके लिए तो इजी है, सिंपली क्या कर लो, बी मल्टीप्लाई बाय डी, ठीक है, और उसको हाफ कर देना। बट इसके लिए टी सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा कि क्या करोगे, फ्लैंज का एरिया ऐड कर लो, ये फ्लैंज का एरिया हो जाएगा, इसका पहले फाइंड आउट कर लो, फिर उसके बाद ये वेब का एरिया फाइंड आउट कर लो, इन दोनों को ऐड कर देना, टोटल एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया को हाफ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल आ जाएगी, इंशाल्लाह ताला आपको उसमें चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा हम चलते हैं जी आगे, और ये दिस इज द सेम थिंग कि सिंपली आपने प्लास्टिक मूवमेंट फाइंड करना है तो क्या करोगे, यील्डिंग, ठीक है, और उसके बाद क्या कर दोगे, उसको या तो कंप्रेसिव एरिया से मल्टीप्लाई कर दो या टेंसाइल एरिया, और वो ऑब्वियसली वो टोटल एरिया का हाफ हो जाएगा, जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हाफ एरिया मल्टीप्लाई बाय ए, तो दिस वुड बी जेड, जेड और ए क्या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एरियाज, मतलब ये कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स इनके दरमियान में जो सेंटर से सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा, दिस इज द मोमेंट आर्म, ठीक है जी। सो दिस वॉज द बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द बीम्स। बेसिकली हमने पढ़ा क्या कि बीम्स, सबसे पहले तो क्या है कि बीम्स में क्या होते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, नॉट द एक्सियल स्ट्रेसेस, ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली यही ट्रस और बीम में यही डिफरेंस होता है कि वो एक्सियली फोर्स मेंबर्स होते हैं, हाउ दीज आर फ्लेक्सुरली, या इसमें हम बेंडिंग प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर फ्लेक्सुरली स्ट्रेस मेंबर्स, ठीक है, बीम्स, ये बेसिक डिफरेंस था। उसके बाद हमने उसका फेलियर मैकेनिज्म देखा कि उसका फेलियर मैकेनिज्म होता कैसे है, ठीक है। हम जैसे अगर मैं इसको दिखा चुका हूँ कि ये फेलियर मैकेनिज्म कि सबसे पहले टॉप पे पहले यील्डिंग कम होती है, फिर यील्डिंग हो जाती है, बॉटम पे यील्डिंग, और फिर ऑब्वियसली वो फेलियर प्रोग्रेस करना शुरू हो जाता है टॉप से लेकर बॉटम तक, और वो जो फेलियर फिनोमेना शो हुआ पड़ा है वो इन हाईलाइटेड रीजन से शो हुआ पड़ा है, जैसे कि ये ब्लैक वाले रीजन्स में शो हुआ पड़ा है, ठीक है। दिस इज ऑफ फेलियर मैकेनिज्म। पर प्लास्टिक हिंज क्या होती है, प्लास्टिक हिंज वो हो जाती है बिल्कुल फेलियर स्टेज है, लास्ट फेलियर स्टेज है। नॉर्मली हम इधर फेलियर कंसिडर कर देते हैं, बट दिस इज द, अगर हम उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी फर्दर कंसिडर करें तो दिस इज द फेलियर मैकेनिज्म। इसके बाद फर्दर कोई लोड नहीं उठा पाएगी वो बीम, ठीक हो जाएगा। ये प्लास्टिक हिंज फिनोमेना है। फिर हमने ये देखा कि उसकी प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी और यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट कर रही है। उसमें एक इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है और एक प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे इसके एनालिसिस की प्रॉब्लम के, हमने अगर लेट से फाइंड आउट करना है कि उसकी इलास्टिक मूवमेंट यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है और प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। आपके पास प्रॉब्लम है,
पहला प्रॉब्लम ये है कि ये आपके पास एक सेक्शन उसने बना दी है कि ये एक सेक्शन है फॉर द बिल्टअप सेक्शन, उसने खुद से एक रैंडमली बनाया है, ठीक है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसका इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस एस फाइंड आउट करना है, और फिर ऑब्वियसली उससे यील्डिंग मूवमेंट फाइंड आउट कर लोगे पहले, और फिर उसके बाद बी पार्ट में प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और फिर प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी। बेंडिंग इज अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है, ठीक है जी। तो आपके पास देखो ये एक सेक्शन है, ठीक है, डब्ल्यू शेप ही बना हुआ, बट ये कोई सेक्शन रेफरेंस नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री द इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इज लोकेटेड मिड स्पैन, चूंकि सिमेट्रिकल है, डब्ल्यू शेप है, मतलब जो टॉप पे फ्लैंज है बॉटम पे भी वही फ्लैंज है, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस इधर ही रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एस, और एस का फार्मूला क्या था, एस इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या, फ्लैंज का उसी तरीके से जो मोमेंट एरिया थ्योरम बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली कोई रेक्टेंगुलर रीजन तो सिर्फ होता तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12, बट आप अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले टॉप फ्लैंज का एरिया फाइंड आउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लो। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, टॉप फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर आएगा, वो जी हो जाएगा। तो अब आप देखो, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो इसकी विड्थ कितनी है 8, इसकी हाइट कितनी है 1 इंचेस, तो सिंपली फार्मूला अप्लाई करो, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12, बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12, सिंपली फार्मूला अप्लाई करोगे तो बी कितना है, दैट इज 8 इंचेस, ठीक है। और एच कितना है, इस वाली खाली फ्लैंज की बात कर रहा हूँ, तो खाली इसका क्या 1 हो जाएगा, एच 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 कर दोगे, 1 का क्यूब 1 ही होगा, जब 8 डिवाइड बाई 12 करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 0.667, ठीक है, 0.667 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास टॉप वाले फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, 0.667, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया सिंपल है, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना है, इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। उसके अलावा डी, व्हाट इज़ द डी, डी क्या चीज़ है, डी आपका ये जो टोटल ये जो है ना सेक्शन है, इसके सेंटर से ऑब्वियसली चूँकि सिमेट्रिकल शेप है, एक जैसी शेप है, टॉप पे फ्लैंज है बॉटम पे फ्लैंज है, तो इसलिए आसान। तो इस सेंट्रल एक्सिस से लेकर इस वाले फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस, इस वाले फ्लैंज तक के सेंटर तक का डिस्टेंस, तो अगर ये देखो ये खाली वेब कितनी है 12 इंचेस है, तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस देखा जाए तो कितना हो जाएगा 6 इंचेस, और 6 इंचेस के बाद ये 1 इंच का हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 इंचेस, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 0.5 6.5, 6.5 क्या डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो टोटल सेंट्रोइडल एक्सिस है इधर से लेकर इस टॉप वाले फ्लैंज के टॉप तक का डिस्टेंस, तो 6.5 इंचेस ऐसे बन जाएगा आपके पास डिस्टेंस डी। तो ये टॉप वाले फ्लैंज आ जाएगा, टॉप वाले फ्लैंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका एरिया, उसका डी। अब इसके बाद फार्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए डी स्क्वायर, ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम प्रीवियसली भी कर चुके हैं। तो अगर इन सबको करोगे तो आपके पास ये टॉप फ्लैंज की ये टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से बॉटम फ्लैंज का भी सेम ही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सिमेट्री सेम है, उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा, उसकी भी विड्थ उतनी है, ठीक है, और उसके बाद उसका एरिया भी उतना हो जाएगा, और उसका डिस्टेंस भी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो उसी तरीके से 6.5 ही बनेगा जैसे बॉटम के लिए किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, वेब के लिए बात करते हैं। तो वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फाइंड आउट करोगे, वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे करोगे कि वेब की विड्थ ये हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और विड्थ कितनी है इसकी 0.5, और हाइट कितनी है अगर आप देख सको तो ये आ जाएगा आपके पास 1 फीट, ठीक है, मतलब 12 इंचेस। तो आप फार्मूला वो यूज़ करोगे, इसकी विड्थ कितनी है 0.5 इंचेस, ये 0.5 बी आ जाएगा। एच कितना है, ये आपके पास 12 इंचेस, तो एच क्यूब बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12 होता है ना, तो ये एच का क्यूब हो जाएगा, 12 का क्यूब ये 12 है, और उसके बाद डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 12 अगर इससे एक बार कट जाए तो 12 स्क्वायर बच जाएगा, 12 स्क्वायर कितना होता है 144, और 144 को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से तो दैट वुड कम आउट टू बी 72, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास 72 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर लोगे, तो इस वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ जाएगा। अब इसका एरिया भी नहीं फाइंड किया हुआ, इसका डिस्टेंस भी नहीं फाइंड किया हुआ। वो क्यों नहीं किया हुआ, क्योंकि देखो पहली टर्म तो इसके लिए क्या थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए, चलो एरिया हम निकाल लेते हैं लेट से, तो डी क्या चीज़ है, डी है डिस्टेंस, अगर मैं दिखा सकूँ डी क्या है डिस्टेंस, ये जो टोटल पूरा क्रॉस सेक्शन है, ये जो पूरी शेप है, ठीक है, इसका सेंट्रॉइडल ये है, और उसका इस वेब के सेंट्रॉइड से कितना डिस्टेंस, तो देखो इसका भी सेंटर इधर है और पूरा वेब है, इस पूरे वेब ये जो 12 इंचेस है इसका सेंटर भी इधर ही लाई कर रहा है, तो डी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी,
ठीक है, मतलब इस पूरे सेक्शन का सेंटर और इस वेब का सेंटर भी एक ही जगह पर है, तो इस वजह से डी डिस्टेंस 0 है। अब जब डी डिस्टेंस 0 है दैट मीन्स मुझे ए फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डी 0 हो जाएगा तो अगर मैं उसको ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो टर्म ओवरऑल 0 हो जाएगी, तो मुझे वेब के लिए ये टर्म फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से मुझे खाली ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया 72। अब इन सबको ऐड कर लिया तो आपके पास इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऐसे आ जाएगा। ठीक हो गया जी, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिया तो अब मेरे लिए आसान है उसका इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करना। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई सी। क्या हो जाएगा, आई डिवाइड बाई सी। अब आई तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अब सी क्या चीज़ है, सी क्या चीज़ होती है, सी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द आइदर टॉप मोस्ट फाइबर और द बॉटम मोस्ट फाइबर। अब लेट से अगर मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ टॉप मोस्ट फाइबर पे, टॉप पे स्ट्रेसेस अप्लाई हो रहे हैं, तो टॉप पे क्या हो रहे हैं, कंप्रेसिव, मतलब लोड अप्लाई किया तो टॉप पे कंप्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है, बेंडिंग की वजह से, और बॉटम पे टेंसाइल हो जाएंगे। और मुझे कंसर्न है टेंसाइल स्ट्रेसेस से, ठीक है, या मुझे ये कंसर्न है कि भाई इस मेंबर की कम से कम कितनी प्लास्टिक मूवमेंट कैन कैपेसिटी है। अब चूंकि तो ये सिमेट्रिकल सेक्शन है कि इसके सेंटर से टॉप तक का भी उतना ही डिस्टेंस होगा जितना बॉटम तक का, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लेट से मैं बॉटम तक कंसिडर कर रहा हूँ, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ठीक है, ये 6 इंचेस, मतलब अगर 12 का हाफ कर दूं और प्लस इसमें 1 ऐड कर दूंगा, मतलब मुझे बॉटम मोस्ट फाइबर ये यहाँ तक पहुँचना है, इसके सेंटर तक नहीं पहुँचना फ्लैंज के, ठीक है, ये फ्लैंज के बिल्कुल बॉटम तक पहुँचना है, तो 6 + 1 7 इंचेस बन जाएगा। इस तरीके से आप इसके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, तो सी क्या हो जाएगा 1 + 12/2, मतलब 1 इंचेस वो फ्लैंज की थिकनेस और 12/2 उसका हाफ कर दो 7 इंचेस। तो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, आई डिवाइड बाई सी, ये हमारे पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ गया। अब जब हमारे पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा उसको हम सिंपली यील्डिंग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका यील्डिंग मोमेंट आ जाएगा। तो यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी थी हमारे पास 50 की, ऐसा गिवन है स्टील के लिए, तो 50 × 107 दैट कम्स आउट टू बी यील्डिंग मोमेंट। ये किप इंचेस में है, इसको सिंपली अगर 12 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास ये किप फीट में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये तो आ जाएगी हमारे पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करना और उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंगली यील्डिंग मोमेंट फाइंड करना। ये आ जाएगा पहला आंसर जो हमारे पार्ट ए है। अब पार्ट बी के लिए क्या करना है, पार्ट बी के लिए हमारे पास था आपने उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करना है और उसके बाद प्लास्टिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है। अब याद रखना प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, z, उसका फार्मूला क्या था मैं प्रीवियसली बता भी चुका हूँ कि हम पहले इस सेक्शन का हाफ एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब इसका एरिया निकाल लूँ उसको हाफ कर दूंगा और मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा ए से। अब ए क्या था कि ऑब्वियसली इसके ये इसका कहीं टॉप पे कंप्रेशन होगा, ठीक है, और बॉटम पे टेंशन होगा, कहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लैंज के अंदर हो, वो वेब के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान मोमेंट आर्म, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि ऑब्वियसली इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, इस डब्ल्यू सेक्शन को मुझे इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए कि लेट से इस ऑब्वियसली अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो ये वाला रीजन क्या है, ये पूरा रीजन क्या है कंप्रेशन में, और ये बॉटम वाला रीजन क्या है टेंशन में, ठीक है। अब इस पूरे ये जो वेब वाला कुछ पोर्शन है और फ्लैंज मिला के ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड लाया कर रहा होगा, इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड हो जाएगा और इस पूरे नीचे वाले रीजन का भी कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे इस सेंट्रॉइडल एक्सिस से उधर तक के सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लेट्स से कि अगर कंप्रेसिव फोर्स टॉप में ऐसे लाई कर रही है, इधर कहीं लाई कर रही होगी, ठीक है, और टेंसाइल फोर्स इधर कहीं लाई कर रही होगी, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे इस सेंटर से पहले तो कंप्रेशन तक के सेंटर तक का डिस्टेंस और फिर इसी किसी टेंशन तक का डिस्टेंस वो सेम ही होगा और तब जाके मेरे पास ये मोमेंट आर्म आएगा। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइडल एक्सिस बिकॉज द शेप is symmetrical about the axis divide the into equal areas, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना है अगर उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है जिसको मैंने डोनेट कर दिया y डैश से, तो आप वो कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर इसके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस ये y फाइंड करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, पहले इसको सिर्फ अपर वाला रीजन, ये वाला रीजन अपर रीजन कंसीडर कर लेंगे। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर वही तरीके से हम मोमेंट एरिया थ्योरम यूज़ करेंगे। मोमेंट एरिया थ्योरम क्या है जी, वो क्या हो जाएगा कि टॉप वाला फ्लैंज का एरिया, टॉप वाले फ्लैंज का एरिया कितना है, वो इसी तरीके से 8 × 1, तो ये आपका टॉप का एरिया आ जाएगा। अब वाई क्या चीज़ है, वाई क्या है, इधर से लेकर इस फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस, वाई क्या चीज़ है, इधर से लेकर फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस वो कितना हो जाएगा 6.5, ठीक हो जाएगा। तो ए वाई कितना आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा फ्लैंज के लिए कितना आ जाएगा 52। यहाँ तक क्लियर है, वो फुली क्लियर होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ इस वाले वेब के लिए करना है। तो अब इस वाले वेब का एरिया कैसे फाइंड करोगे, अगर मैं पिछली स्लाइड में दिखा सकूँ
तो इस वाले वेब का एरिया कैसे अगर इसका इधर से लेकर इधर तक एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तुम्हारे पास कितना है, ये 6 इंचेस हो जाएगा, ठीक है। और 6 इंचेस को इसकी थिकनेस कितनी होगी, हाफ इंचेस, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंचेस। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर इस वाले वेब का मैं करूँ तो 6 मल्टीप्लाई बाई 0.5 अगर मैं दिखा सकूँ, ठीक है, तो दैट वुड बी 3 इंच इसका, ये इसका एरिया हो जाएगा। अब इधर से लेकर इस वाले वेब के सेंटर तक पहुंचना है, तो अगर 6 है तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, वो 3 इंचेस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका एरिया और इसका वाई डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, इसका एरिया निकाल लिया, ये इधर से लेकर इधर तक 6, ठीक है, उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, उसका एरिया 3 आ जाएगा। और इसका सेंटर इधर लाई करोगे इसका वेब का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 3 इंचेस है। तो इसका ए वाई कितना आ गया, 9। आपने क्या कर लेना है, समेशन ए वाई, ठीक है, समेशन इन सबको ऐड कर दिया और समेशन ए आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, अगर आपको चाहिए कि भाई ये टोटल सेक्शन के सेंटर से इस वाले ऊपर वाले रीजन के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है, दैट इज वाई डैश, वो फाइंड आउट करना है। तो आप प्रीवियस स्लाइड में चले जाएं तो आपके पास ये फॉर्मूला समेशन ए वाई, ये है हमारे पास जो मोमेंट एरिया थ्योरम है, और हमारे पास समेशन ए, तो हमारे पास आ जाएगा वाई डिस्टेंस आ जाएगा, वाई डैश, ठीक है। अगर ये वाई डैश आ जाएगा ऊपर वाले रीजन के लिए, सिमेट्रिकल शेप है, तो नीचे वाले रीजन के लिए भी उतना ही वाई डैश हो जाएगा। मतलब क्या है कि हमारी कंप्रेसिव फोर्स किधर ऐड कर रही है, इस जगह पर ऐड कर रही है, और वो टेंसाइल फोर्स इधर ऐड कर रही है। तो अब ये हमारे पास मोमेंट आर्म में आ जाएगा, हमारे पास मोमेंट आर्म क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास मोमेंट आर्म आ जाएगा। तो हमारे पास मोमेंट आर्म आ जाएगा 11.09 इंचेस। और अब हमने क्या कर देना है, हाफ ऑफ एरिया, हमने क्या कर रहे हैं, हाफ ऑफ एरिया करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो सिर्फ ऊपर वाले हाफ का टोटल एरिया कितना बन रहा है, ये इस पूरे वाले ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका एरिया कितना बन रहा है, 11 इंचेस, 11 इंच स्क्वायर, और नीचे वाले हाफ का भी कितना हो जाएगा, 11 इंच स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 22, और 22 को जब मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो फिर से 11 ही आ जाएगा। मतलब देन अगेन अगर टोटल एरिया कितना है 22, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो हमारे पास हाफ एरिया क्या आ जाएगा, 11 मतलब हाफ एरिया मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ये पूरी टर्म मिला के क्या आई है, ये जो चीज़ आएगी ये है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा। जब प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा उसको सिंपली एफ वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास प्लास्टिक मूवमेंट आ जाएगा, इसको 12 से डिवाइड करोगे तो ये किप फिट में आ जाएगा। तो हमारे पास प्लास्टिक मूवमेंट सेक्शन मॉडुलस ये, प्लास्टिक मूवमेंट ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है जी। ये था हमारा पहला प्रॉब्लम। अब आ जाते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। ये तो था कि अगर कोई भी एक रैंडम सेक्शन दिया हो तो उसका कैसे फाइंड आउट करना है। बट अगर कोई स्टैंडर्ड सेक्शन दिया हुआ है जो हमें डिज़ाइन एड में गिवन है, लेट्स से अगर मैं करूँ कि अगर मेरे पास एक सेक्शन है W10/16, डिज़ाइन एड में जाकर देखें इसकी प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी बता दें, तो अब आप क्या करोगे, प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी के लिए आपको क्या चाहिए, MP के लिए आपको क्या चाहिए, आपको FY चाहिए। FY पता चल जाएगा, A992 स्टील है, उसका कितना होता है 50 KSI होता है, ठीक है। तो एक तो चाहिए FY हमें पता है। उसके अलावा क्या चाहिए हमें, उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, क्योंकि MP फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब डिज़ाइन एड में डायरेक्टली वैसे गिवन होता है, आप जाकर देखोगे, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, उसमें गिवन होता है कि उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है कितना, ठीक है। W10/60 के लिए देखोगे सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे। बट अगर ना गिवन हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली हमें Z चाहिए, Z के लिए क्या चाहिए, हमें हाफ एरिया फाइंड आउट करना है। तो डिज़ाइन एड में जाकर देखना, डिज़ाइन एड में जाकर उसका एरिया देखोगे कितना 17.6, उसको हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 8.8 इंच स्क्वायर। उसके बाद क्या चाहिए, मोमेंट आर्म चाहिए। मोमेंट आर्म क्या होता है कि आपके पास ये जो कंप्रेसिव फोर्स है और लेट्स से टेंसाइल फोर्स है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। अब ये फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, हमें पहले ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक चाहिए, वाई डैश, ठीक है, और फिर उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब जाके देख डिज़ाइन एड में देख लीजिएगा, अगर ये W10/60 है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, T सेक्शन बन जाएगा, ठीक है। और वो 10 का हाफ हो जाएगा 5 और 60 का हाफ हो जाएगा 30, WT 5/30। अब इसका डिज़ाइन एड पे जाकर देखोगे तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस गिवन होगा, मतलब उसके टॉप वाले फ्लैंज से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वाई डैश की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस गिवन है तो बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ इधर से लेकर इधर तक, मतलब मैं फिर से शो करूँ कि ये टॉप से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, और सिमिलरली बॉटम वाले के लिए भी वही हाफ है, तो यहाँ तक ये डिस्टेंस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको टोटल वाली डेप्थ में से माइनस कर दिया, तो इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अब ये मैं आपको अगर डिज़ाइन एड में दिखा सकूँ, ये WT 5/30, तो अगर ये देख सके हम डिज़ाइन एड में, आप जाएंगे डिज़ाइन एड में और उसका हाफ सेक्शन क्या था, WT 5/30, वो ये है, आपको ये शो हो रहा है WT 5/30, ठीक है।
ये आपके पास इधर चले जाएंगे। आप उसके बाद क्या करेंगे, इसकी वायर डिस्टेंस आप इधर से अगर ये देख सकें WT 5/30, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये वाली 0.884। ठीक है जी, ये आ जाएगा वायर डिस्टेंस क्या है कि ये इसके टॉप से लेकर इस वाले पोर्शन के सेंटर तक का डिस्टेंस। सही हो गया, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। तो वो ये वैल्यू आ रही है 0.884, यहाँ से लेकर आया। एंड देन हाँ जी, तो ये 0.884 टॉप से माइनस कर देंगे और ये बॉटम से माइनस कर देंगे। तो टोटल डेप्थ कितनी है, D, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डेप्थ आ जाएगी। W10 की टोटल डेप्थ डिज़ाइन रेट में जाके देखोगे तो टोटल डेप्थ की वन होगी 10.2 इंचेस। ठीक है, एग्जैक्टली 10 नहीं होगी, डिज़ाइन रेट से आपको पता चल जाएगा। ये इसका एरिया भी और इसकी डेप्थ भी आपको उधर से मिलेगी। तो टोटल डेप्थ में से ये डिस्टेंस माइनस कर दो और इधर नीचे से भी उसी तरह से माइनस कर दोगे, तो आपके पास इन दोनों के दरमियान में ये सेंटर टू सेंटर मोमेंट आर्म आ जाएगा। तो 10/2 माइनस 2 टाइम्स कर देंगे। 2 टाइम्स मैं आपको बता चुका हूँ, एक ऊपर से माइनस करना है, एक बॉटम से माइनस करना है, और ये आपके पास मोमेंट आर्म आ जाएगा। मोमेंट आर्म आ गया, उसको सिंपली क्या करना है, उसके हाफ एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ एरिया इंटू ए, आपके पास ये आ जाएगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। सो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आपने निकाल लिया। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के बाद सिंपली आप क्या कर दोगे, FY इंटू जी कर दोगे। सिंपली आप FY पता है, आपको जी पता है, दैट कम्स आउट टू बी 3710 आ जाएगा। ठीक है, किप इंचेस, और उसको डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपके पास उसकी प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, हमारा सेक्शन मॉडुलस कितना आया, हमारे पास सेक्शन मॉडुलस आया, प्लास्टिक मॉडुलस जो हमने कैलकुलेट किया 74.2। जब आपके डिज़ाइन टेबल्स में जाके इस सेक्शन के लिए देखोगे, ये W10/60, ठीक है, इसका एरिया भी उधर नजर आएगा, आपको डेप्थ भी नजर आएगी। उसके बाद आपको उसकी Z वैल्यू भी आ जाएगी। तो डिज़ाइन एड में कितनी बता रहा है, 74.6 बताएगा। ठीक है, जो कि तकरीबन उसी के आसपास है। थोड़ा सा फ़र्क क्यों है, क्योंकि हमने जो वैल्यूज़ राउंड ऑफ कर देते हैं, टेबुलर वैल्यूज़, उसमें वैल्यूज़ राउंड ऑफ हो जाती हैं, इस वजह से वो फ़र्क आता है। बाकी ऑलमोस्ट सेम आ जाएगा। तो डायरेक्टली गिवन होगी, बट अगर ना गिवन हो तो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे, और प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी तक हमने क्या कर चुके हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर कोई बिल्ट अप किसी भी शेप का बना हुआ हो या आपको स्टैंडर्ड हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब एक हम एंड टी शेप भी देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमारे पास टी शेप के लिए क्या हो जाएगा कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसकी देन अगेन यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है, और प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करनी है, और उसके बाद उसके लिए ऑब्वियसली जेड फॉर दैट स्टील बीम। ऑल्सो कैलकुलेट द शेप फैक्टर, आपने शेप फैक्टर भी फाइंड आउट करना है, वो होती है रेशो Z/S, और नॉमिनल लोड की ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है ये बीम, अगर उसका स्पैन कितना हो 12 फीट। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने खाली उसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं बतानी, हमने उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बतानी है कि उस पर लोड कितना अप्लाई किया जा सकता है। ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये टी शेप है, देन अगेन सिंपल उसी तरीके से है कि सबसे पहले क्या चाहिए आपको, MY चाहिए। ठीक है, अब MY के लिए फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि आपको क्या चाहिए, इस MY के लिए आपको FY चाहिए, और इनटू क्या चाहिए, S। ठीक, तो ये तो पहला स्टेप है। अब S फाइंड आउट करने के लिए फिर हम क्या करते थे, S इज इक्वल टू व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय C। ठीक है, C। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, इस पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब याद रखिएगा कि ये कोई सिमेट्रिकल शेप नहीं है, मतलब सिर्फ टॉप पे फ्लैंज है, बॉटम पे फ्लाई नहीं है। तो टी शेप क्या है, अनसिमेट्रिकल शेप है। सही हो गया। तो आपको क्या है, पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, उसके अलावा फिर आपने C फाइंड आउट करना है। C क्या डिस्टेंस हो जाएगा, उसके सेंट्रॉइडल से टॉप मोस्ट फाइबर भी हो सकता है, बॉटम मोस्ट फाइबर भी हो सकता है, बट हम कौन से चूज़ करेंगे, बड़े वाली वैल्यू चूज़ करेंगे। और क्यों करेंगे, ताकि हमारे पास सेक्शन मॉडुलस कम से कम आए, ताकि हम उसकी कम से कम उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी। अगले स्टेप में आपको इंशाल्लाह ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑन फर्स्ट जी, सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए पहले तो इस पूरे सेक्शन का पहले सेंट्रोइडल एक्सिस का पता होना चाहिए। अभी तो नहीं पता कि इसका सेंट्रोइडल एक्सिस किधर है, चूंकि अनसिमेट्रिकल शेप है तो ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल सेंटर पर लाई कर रहा होगा। ठीक है, उसका पहले हम टॉप से लेकर उसके सेंट्रोइडल तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और फिर से कैसे फाइंड आउट करेंगे, वही आपके पास वही जो फार्मूला यूज़ करते आया हो, समेशन, जो अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी किया था, मोमेंट एरिया थ्योरम यूज़ करोगे। तो क्या करोगे, टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो या आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि सबसे पहले क्या करोगे, ये टॉप वाले का एरिया फाइंड आउट कर लो। तो टॉप वाले का एरिया क्या हो जाएगा, 8 × 1.5। ठीक है, मतलब ये फ्लैंज का क्या हो जाएगा, विड्थ क्या है B, और इसकी थिकनेस क्या है 1.5। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 8 × 1.5, दैट वुड कम आउट टू बी 12। और फिर नीचे वाले ये इधर से लेकर तक का वेब तक का एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो मैं समीशन एरिया ये आ जाएगा मेरे पास फ्लैंज का एरिया, ये फ्लैंज की है विड्थ 8 इंचेस, ये उसकी थिकनेस है। ठीक है, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर, ये फ्लैंज का एरिया हो जाएगा, और उसके अलावा जो वेब का एरिया क्या हो जाएगा, उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है 6 इंचेस, और उसकी विड्थ कितनी है 12 इंचेस। तो ये आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा, समीशन ऑफ एरिया ये आ जाएगा।
ये क्लियर है जी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए वाई और ए वाई ये फ्लैंज के लिए करेंगे और ये इस तरीके से करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने टेबल फॉर्म में किया था, ये वैसे इसने ऐसे किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, फ्लैंज का एरिया कितना है, फिर से देखो फ्लैंज का एरिया 12 इंचेज आ जाएगा, मतलब 12 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 1.5 करोगे 12 आ जाएगा। अब इसका 0.75 कैसे आया, 0.75 अगर मैं बता सकूँ तो 0.75 क्या है कि हमने क्या किया, ये इधर से, ठीक है, हमने इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, टॉप से लेकर इधर तक का डिस्टेंस कितना है, तो वो क्या है, अगर 1.5 है, 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा, 0.75। मैं पहले तो फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है। तो उस केस में हमने सेंटर से लेकर चले थे, हम इधर सिर्फ टॉप से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, दोनों तरीके से कर सकते हो। चूँकि हमें अभी सेंट्रोइडल एक्सिस नहीं पता, मैं सेंटर से नहीं कर सकता वो डिस्टेंस, तो इस वजह से मैं सिर्फ टॉप से फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ कि टॉप से सेंट्रोइडल एक्सिस इसका कहाँ पे लाई करेगा। तो टॉप को रेफरेंस ले लिया, मतलब रेफरेंस लाइन अब ये है, ठीक है। तो इस रेफरेंस लाइन से इस फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.5 का हाफ हो जाएगा, 1.5 इंचेस का हाफ कितना होता है, 0.75, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा इसका एरिया इनटू दिस डिस्टेंस 0.75, तो आपके पास ए वाई ये आ जाएगा। अब आपने इस वेब का फाइंड करना है, तो वेब का एरिया कितना हो जाएगा, वेब का एरिया क्या था, 6 × 12, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा टॉप से लेकर और इस फ्लैंज के सेंटर, इस वेब के सेंटर तक, तो वेब हमारा कितना है, ये 6 इंचेस, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, अगर ये 6 है तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 इंचेस। तो 3 इंचेस प्लस दिस 1.5 इंचेस कितना हो जाएगा, 4.5 इंचेस। तो इस तरीके से ये टॉप से लेकर ये इसके सेंटर तक, वेब तक के सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 4.5 इंचेस, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा ये फ्लैंज का एरिया और फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस ऊपर से। तो ये मैं अगर दोबारा से बना सकूं, मैं साथ साथ चलें आपको बना के दिखाता जाता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास, अगर ये फ्लैंज है, ठीक है, तो ये फ्लैंज और फ्लैंज के सेंटर तक का डिस्टेंस 0.75 ये हो जाएगा। उसके बाद वेब का एरिया ये हो जाएगा 12 इंचेस, और टॉप से लेकर वेब के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये अगर मैं वेब का सेंटर कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4.5 इंचेस। और इनको समेशन ये ए वाई ये समीशन ए वाई हो जाएगी टू ऊपर वाले टर्म, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, समीशन एरिया। ये वही इक्वेशन है, मैं फिर से बार बार रिपीट करूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। समीशन ए वाई और नीचे आ जाएगा समीशन ए, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, और इसका मिला के हमारे पास वाई डैश आ जाएगा कि वाई डैश इज इक्वल टू 2.625 इंचेस फ्रॉम द टॉप। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे का सेंट्रॉइड क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू 2.625 इंचेस फ्रॉम द टॉप। क्यों, क्योंकि अब हमने टॉप से देख लिया कि टॉप से इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, इस सेक्शन का। तो हमें ये इस तरीके से मोमेंट एरिया थ्योरम से निकाल लिया, ठीक है जी। अब हमें चूँकि वो निकल आया कि हमारे पास वाई डैश आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन अगेन वही तरीका है, उसी तरीके से है कि सिंपली जो टेबुलर फॉर्म में हम पहले कर चुके हैं पहले वाले प्रॉब्लम में ही, तो हम उसको क्या करेंगे कि क्या पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसी तरीके से इसका पहले वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लोगे आई डैश, ठीक है। और उसके बाद क्या कर देंगे, प्लस उसका वो जो डिस्टेंस ए फाइंड आउट करोगे, अगर मैं इस तरह लाइन बना लूँ, फिर उस तरीके से डी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे, और फिर उसके बाद आप ये इस तरीके से ए डी स्क्वायर कर दोगे। तो देन अगेन ये वही टर्म्स हैं। तो सबसे पहले क्या कर दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मैं दिखा सकूँ तो फिर से वही बी क्या है 8 इंचेस, और उसके बाद एच क्या है 1.5, तो बी एच क्यूब डिवाइड बाई 12, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका एरिया, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, इसका एरिया 8 मल्टीप्लाई बाई 1.5, ये इसकी टर्म बन जाएगी एरिया। और डी क्या चीज़ हो जाएगा, डी अब डिस्टेंस हो जाएगा जो अभी आपने सेंट्रोइडल फाइंड आउट की, उधर से लेकर उसके सेंटर तक का डिस्टेंस। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं इसको दिखा सकूं कि पहला स्टेप था हमारे पास, पहले इसकी सेंट्रोइडल का पता होना चाहिए था, ठीक है, वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लेकर आए और ये, अब हमें ये पता है कि ये इसकी लेट से मैं ये कह देता हूँ कि दिस इज़ द लेट्स से दिस इज़ द सेंट्रोइडल एक्सिस, और वो कितना डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमने अभी फाइंड आउट कर लिया, वो कितना आ गया 2.625, ये पूरे सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई डैश फाइंड आउट कर लिया इस वेब का, फिर इसका एरिया, और अब इस एरिया इसके यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक का सेंटर कितना हो जाएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये 2.625 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसमें से ये
जो फ्लैंज है ये आधा माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना है 2.625 और फ्लैंज कितना था 1.5, 1.5 का हाफ कर दोगे तो 0.75, तो क्या आ जाएगा 2.625 और इसमें से हाफ फ्लैंज माइनस करोगे तो हाफ फ्लैंज कितना होता है 0.75, तो 2.625 माइनस 0.75 करोगे तो आपके पास बच जाएगा कितना 1.875, कितना बचेगा 1.875, तो इसका स्क्वायर ले लोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई डैश प्लस ए इंटू डी स्क्वायर, ये तो हो गया फ्लैंज के लिए हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब वेब के लिए फाइंड आउट करना है, तो वेब के लिए भी उसी तरीके से करना है। फिर अब वेब का इसी तरीके से यहाँ से लेकर वेब शुरू हो रहा है तो वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करोगे, मतलब ये 2 है, एच इतना हो जाएगा 6³ / 12, इस वेब का एरिया कितना हो जाएगा 2 × 6। अब क्या करना है, इस वेब के सेंटर से, इस वेब का ये जो वेब का सेंटर है इधर से लेकर इसके सेंट्रोइडल तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे, वो भी उसी तरीके से सिंपल सा है कि इसके वेब के सेंटर से इधर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। देखो अगर मैं दोबारा से इसको बना दूं तो आपके लिए कोशिश यही है कि आपको जितना सिंप्लीफाई करके बता सकूं वो फुली आपको चीज़ क्लियर होगी, और अगर ना भी हो तो हम इंशाल्लाह ताला इसको फिर से सेशन में क्लियर कर देंगे। तो हमें अब ये कंसर्न है कि ये इसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे वेब का। तो आप देख लो कि फिर से मैं अगर बना दूं एक रेफरेंस लाइन, देखो ये पूरे सेक्शन का सेंटर ये है और उसका डिस्टेंस क्या है इधर से लेकर इधर तक कितना है 2.625, हमें पता है 2.625। और अभी मुझे इस वेब के सेंटर, मैं ये कह देता हूँ लेट्स से मैं इस वेब का सेंटर जो सिर्फ वेब का सेंटर है वो इधर है, तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। लेट्स से इस अगर ये वेब शुरू हो रहा है 6 इंचेस, तो इस वेब के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 3 इंचेस, ठीक है। और इस 3 में ये मैं कितना ऐड कर दूँ 1.5, ये जो था फ्लैंज का, तो कितना हो जाएगा टॉप से लेकर ये जो मेरा फ्लैंज है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4.5, 3 + 1.5 4.5, तो टोटल कितना है टॉप से लेकर मेरा वेब का सेंटर 4.5, अगर मैं बना सकूं टॉप से लेकर मेरा वेब तक का सेंटर कितना है 4.5, जबकि टॉप से लेकर पूरे सेंट्रोइडल एक्सिस तक का डिस्टेंस कितना है 2.625। तो मैं फिर से उसी तरीके से माइनस करूंगा 4.5 माइनस 2.625, मैं क्या करूंगा 4.5 माइनस यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2.625, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा ओवरऑल जो सेक्शन का सेंट्रोइडल है उसका, ये मैं अगर सेक्शन का सेंट्रोइडल एक्सिस है, ठीक है, और ये जो है ये वेब का सेंट्रोइडल एक्सिस है, तो वेब के सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप क्या करोगे 4.5 माइनस क्या कर दोगे 2.625, ठीक है, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा इस वेब के लिए 1.875 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये भी उतनी निकल रहा है, तो होपफुली आपको क्लियर होगा। देन अगेन वही फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए डी स्क्वायर, फिर इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए डी स्क्वायर, तो आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकल आएगा, ठीक है। होपफुली कोशिश तो की है, समझ में आ गया होगा। तो अब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, उसके बाद क्या करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आ जाएगा उसके बाद आप क्या कर दोगे सी। अब ये सी क्या चीज़ है, अब आखिरी ये चीज़ समझने वाली है, बाकी इंशाल्लाह ताला सारा क्लियर हो जाएगा। सी इज़ द डिस्टेंस, मैं भी आपको बार बार रिपीट कर चुका हूँ कि देखो सी क्या चीज़ है, सी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रोइडल एक्सिस टू द टॉप मोस्ट फाइबर या द बॉटम मोस्ट फाइबर, ठीक है। अब हम ये देख चुके हैं कि ये वाई डैश कितना है, ये कितना है 2.625, हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो या तो सी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है या तो सी यहाँ से लेकर यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। अब हमने कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, हमने बड़े वाली वैल्यू यूज़ करनी है सी की, क्योंकि देखो सी वैल्यू अगर बड़ी वाली होगी तो क्या हो जाएगा एस की वैल्यू कम से कम आएगी, और एस की वैल्यू जब कम से कम आएगी तो फिर जितना एस छोटा होगा उतने ही कम से कम यील्डिंग मोमेंट होगा, दैट मीन्स हम ऑन द सेफर साइड। इसका मतलब ये है ऐसा ना हम बड़े वाली वैल्यू ले लें, लेट्स से हम बड़े वाली ले लें और यील्डिंग मूवमेंट आ जाए 150, हम कहेंगे नहीं जी 150 पे फेल हो रहा है, हालांकि एक्चुअली वो कितने 110 पे फेल हो रहा हो, तो दैट मीन्स हमने एस की वैल्यू कम से कम चूज़ करनी है, और कम एस वैल्यू के लिए हमें सी की वैल्यू बड़ी चूज़ करनी है, ठीक है। तो अब इसमें से सी की वैल्यू कौन सी चूज़ करोगे, सी की वैल्यू कौन सी चूज़ करोगे, अगर तो सिमेट्रिकल सेक्शन होता है रेक्टेंगुलर तो फिर सी सेम होता टॉप के लिए भी और बॉटम के लिए भी, बट इस केस में क्या हो जाएगा कि इधर न्यूट्रल एक्सिस से टॉप के लिए तो क्या बन रहा है 2.625, ठीक है, और इसके लिए क्या बनेगा बॉटम के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 2.625 है, तो बॉटम के लिए क्या हो जाएगा, बॉटम के लिए क्या करोगे, ये जो टोटल है ना 7.5 6 + 1.5, ठीक है, तो 7.5 हो जाएगा, और 7.5 माइनस क्या कर दोगे 2.625, तो ये आ जाएगा अगर मैं 7.5, ठीक है, और इसमें से मैं अगर ये 2.625 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा 4.875,
ठीक है। अगर तो मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरे पास वो डिस्टेंस बच जाएगा, ये कितना 4.875, तो ये आ जाएगा सी। अब देख लेनी है कि वैल्यू कौन सी है। एक सी की वैल्यू आ रही है 4.875 और एक सी की वैल्यू आ रही है 2.625, तो आप बड़े वाली वैल्यू चूज़ करोगे, ठीक है। इस वजह से हम ये चूज़ करेंगे। तो 4.875 हमारे पास ये ऐसे आ गई। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर आ जाएगा हमारे पास आई निकाल चुका हूँ, सी निकाल चुका हूँ, आई डॉट बाई सी, आपके पास इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा। इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ गया, उसको क्या सिंपली क्या करना है, यील्डिंग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास उसका यील्डिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अगर किप फीट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 12 कर दिया तो आपके पास किप फीट में आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास यील्डिंग मोमेंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद प्लास्टिक मूवमेंट फाइंड करना है। और प्लास्टिक मूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए, आपको z फाइंड करना है। अब z एक तो इसने इस तरीके से फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। उसने ये अज्यूम कर लिया कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इज एट द बेस ऑफ द प्लेन, बट आप बचा ये स्टेप फॉलो करने के मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आप प्रीवियसली फाइंड आउट कर चुके हो, ठीक है। तो वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। z हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ उसने कैसे किया है। ये भी तरीका वैसे ही है, बट जो हम पहले तरीके करते हैं हम उसी को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है कि ये टीपी में, तो हमें क्या चीज़ चाहिए थी, हमें पहले तो इसका पूरा एरिया और फिर उस पूरा एरिया को हम हाफ़ कर देंगे। तो पहले हम एरिया तो निकाल ही सकते हैं कि देखो ये कितना है, ये अगर 12 है, सॉरी ये कितना तो 8 था, ठीक है। अगर मैं बना सकूँ फिर से, ठीक है। तो ये आपके पास ये 8 था और ये कितना था 1.5, तो आपने इसका एरिया निकाल लिया कितना 12 हो जाएगा अगर ये 1.5 था, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1.5 12 इंचेस, और उसके बाद ये इसकी विड्थ कितनी थी 2 इंचेस, और ये कितना था, इसकी जो डेप्थ थी वो कितनी थी 6 इंचेस, तो इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस 12 मतलब 12 फ्लैंज का एरिया 12 वेब का एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा 24, और उसको हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। उसका हाफ एरिया हो जाएगा 12, ठीक है। ये तो आपके पास आ जाएगा हाफ एरिया, हाफ एरिया क्या आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 2, 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 12 इंच, तो ये तो हाफ एरिया जाएगा। अब उसके बाद क्या चाहिए कि देखो इसके सेंटर से, ठीक है, और इसके सेंटर से आपको चाहिए इनके दरम्यान में डिस्टेंस, ठीक है। तो इनके दरम्यान में डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, लेट्स से आपको ये देखो ये 6 है, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि अगर प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इधर शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, इसका हाफ कितना बन होगा, 6 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 3 इंचेस, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद क्या करोगे, 3 इंचेस के बाद आपके पास ये देखो ये 1.5 है ना, तो 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 0.75 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.75, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो कंप्रेसिव फोर्स इधर अप्लाई हो रही है और टेंसाइल फोर्स इधर अप्लाई हो रही है, तो इन दोनों के दरम्यान मोमेंट आर्म कितना हो जाएगा 3.75। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली इसको तरीके से क्या करना, हाफ एरिया कितना निकाला 12, ठीक है, और उसको क्या कर दोगे 3.75 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3.75, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 45 इंच क्यूब आ जाएगा आपके पास, z आ जाएगा। ये इस तरीके से मोमेंट निकाले, उसने इसको अलग अलग कर दिया था, टॉप वाले को अलग से कर दिया, उसने क्या किया कि जो डिस्टेंस है वो उस तरीके से उसने फाइंड आउट कर लिया 12 मल्टीप्लाई 0.75, ऊपर वाले के लिए अलग से और इसके लिए अलग से, आप ऐसे ऐसे कर लो, या आप एरियाज ऐड कर लो उसको हाफ करके, और इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अब आपने क्या किया, z आ जाएगा, z को आपने सिर्फ fy से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी आ जाएगी, या प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक है जी। यील्डिंग मोमेंट कैपेसिटी कितनी है, ये प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कितनी है, ये वाली, ठीक हो जाएगा। शेप फैक्टर फाइंड आउट करना है तो या तो इन दोनों की रेशियो फाइंड कर लो, प्लास्टिक मूवमेंट डिवाइड बाय यील्डिंग मूवमेंट, या z डिवाइडेड बाय आप क्या कर लो s, ठीक है। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइड बाय इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस दैट वुड बी द सेम, और रेशियो कितनी आई 1.79, तो दूसरी चीज़ भी फाइंड आउट कर ली कि शेप फैक्टर भी फाइंड आउट कर लिया। अब लास्टली आपने क्या फाइंड आउट करना है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी, भाई उस पर लोड कितना अप्लाई हो सकता है। तो हमारे पास देखो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मैक्सिमम जो मूवमेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, WL²/8, ठीक है। अगर ये सिंपली सपोर्टेड है जैसे कि इस केस में है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करने का फार्मूला है WL²/8। अब इसी को रीअरेंज कर लो, आपको क्या चाहिए, W चाहिए, आपको N तो पता है नॉमिनल, ठीक है। देखो एक है यील्डिंग मूवमेंट कैरी कैपेसिटी, एक है प्लास्टिक मूवमेंट कैरी कैपेसिटी। नॉमिनल क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लोड नॉमिनल मूवमेंट कितना उठा सकते हैं, तो हम इसी को नॉमिनल बोलते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया,
एन की जगह एम प्लास्टिक यूज़ करेंगे। अब आपने क्या करना है, बाकी इसको रीअरेंज कर लेना है कि ये 8 इधर आ जाएगा, एम एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल स्क्वायर उससे डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपको क्या आ जाएगा, ये 8 इधर आ गया, एम एन नॉमिनल मूवमेंट की कैपेसिटी 187.5 फीट, ठीक है, और एल कितनी थी, दैट इज द स्पैन लेंथ। अब स्पैन लेंथ कितना है, दैट इज हमें गिवन है 12 फीट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ले लिया, डिवाइड किया, तो आपके पास देखो वो बता रहा है कि पर की फिट आप कितना लोड अप्लाई करो, 10.4 की पर फिट अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस केस ऑफ अ बीम, इस बीम के लिए, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा जी एक और कि अगर आपके पास अगर एक टी सेक्शन हो, ठीक है, डब्ल्यू टी शेप बीम हो, तो आप उसका प्लास्टिक मूवमेंट और उसकी लोड करने कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आई ट्राइड माय बेस्ट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिज़ाइन करेंगे, होपफुली आपको समझ में आएगा।